ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುಷ್ಟಿ ಕಟ್ಟಿ ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ 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 ಧನ್ಯವಾದಗಳು. स्वागत है भाई, स्वागत है मोदी जी का, स्वागत है भाई, स्वागत है भाई, स्वागत है। विश्व का अग्रमान्य नेता, युवाओं का प्रेरणा, नारी सबलीकरण का चिंतक, हम सबका शक्ति, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को इस पुण्य भूमि से आदरणीय स्वागत करती हूं। अब बीएस येडियूरप्पा जी ಮತ್ತು ಎಚ್.ಡಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ರವರು ನಮ್ಮ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ರವರಿಗೆ ರಾಮನ ವಿಗ್ರಹವನ್ನ ಕೊಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕೋರಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಮೈಸೂರು ಪೇಟವನ್ನು ಧರಿಸಿ ನಮ್ಮ ಈ ನೆಲದ ಸೊಗಡಿನಂತೆ ಮೈಸೂರು ಸಿಲ್ಕ್ ಶಲ್ಯವನ್ನ ತೊಡಿಸಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕೆಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೀನಿ. स्वागत है भाई, स्वागत है भाई, स्वागत है। अब की बार 400 पार, अब की बार जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। ಈಗ ನಮ್ಮ 4 ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಎಚ್.ಡಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ರವರು, ಬಾಲರಾಜು ರವರು, ಒಡೆಯರ್ ರವರು ಹಾಗೂ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ರವರು ಈಗ ನಮ್ಮ ನಾರಿ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ರವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ. जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। भारत माता की, भारत माता की। अब की बार ಈಗ ನಮ್ಮ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಈ ದಿನ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ರವರಿಗೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಭಾವಚಿತ್ರವನ್ನ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದಂತಹ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಈಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ರೈತ ಬಜೆಟ್ನ ಮಂಡಿಸಿದಂತಹ ರೈತ ನಾಯಕ ಹಾಗೂ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಭಾಗ್ಯ ವಿಧಾತ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ವಿತರಿಸಿದಂತಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಬಿ.ಎಸ್. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪರವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೀನಿ. भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम। प्रधानी नरेंद्र मोदी जी ಅವರಿಗೆ
ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ. ಇಡೀ ವಿಶ್ವವೇ ಮೆಚ್ಚಿರುವಂತ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ದಿವಸ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿರುವಂತಹದ್ದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆ ತರುವಂತಹ ಸಂಗತಿ. ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿಗಳಾದಂಥ ಎಚ್ ಡಿ ದೇವೇಗೌಡರು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತಹದ್ದು ಜೆಡಿಎಸ್ ಬಿಜೆಪಿ ಬರುವಂತ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ 28ಕ್ಕೆ 28 ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಇದೆ. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರೇ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿದಂತ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಗಳೇ, ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರೇ, ತಾಯಂದಿರೇ, ಮಾಧ್ಯಮದ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವತ್ತು ಇಡೀ ವಿಶ್ವವೇ ಭಾರತದ ಕಡೆ, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವಂತ ಸಂಗತಿ. ಅಂತ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇವತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು, ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡುವಂತ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತಹದ್ದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸಿದ್ದೇನೆ ಬಂಧುಗಳೇ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾನ್ಯ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿಗಳಾದಂಥ ಎಚ್ ಡಿ ದೇವೇಗೌಡರು ಸಹ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಉಪಸ್ಥಿತಿರುವಂತಹದ್ದು. ಬಿಜೆಪಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಒಂದಾಗಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಹಾಲು ಜೇನಿನಂತೆ ಮುಂದೆ ಬರೋ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಎನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಭರವಸೆಯನ್ನ ನಿಮಗೆ ಕೊಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಬಹುಶಃ ಬರುವಂತ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಜೆಡಿಎಸ್ ಬಿಜೆಪಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಯಾರಿಂದೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಮೋದಿಯವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಾನು ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಕೊಡಬಹುದಾ? 28ಕ್ಕೆ 28 ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನ ಗೆದ್ದು ಮೋದಿಜಿಯವರಿಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ, ಈ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರೇ ಖುದ್ದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾತನಾಡಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಹಣದ ಬಲ, ಹೆಂಡದ ಬಲ, ತೋಳ್ಬಲ, ಅಧಿಕಾರ ಬಲ, ಜಾತಿಯ ವಿಷಬೀಜ ಬಿತ್ತಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಭ್ರಮೆನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಇವತ್ತೇ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರಿಗೆ, ಇವತ್ತು ಬರುವಂತಹ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಫಲಿತಾಂಶದ ನಂತರ ನೀವೆಲ್ಲಿರ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆದರೂ ಸಹ ಮನ ಬಂದಂತೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಇದು ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಉತ್ತರ ಮೈಸೂರು, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಜನ ನಾವು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಅಂತೇಳಿ ಕೈ ಎತ್ತಿ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಈ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಇದ್ರೆ ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದದಕ್ಕೆ ಸಾರ್ಥಕ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಒಂದಾಗಿ ಬರುವಂತಹ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿ 28ಕ್ಕೆ 28 ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಗೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರುವಂತಹ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ, ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರಿಗೆ, ತಾಯಂದಿರಿಗೆ, ಮಾಧ್ಯಮದ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರುವ ಮುಖಂಡರಿಗೆ ವಂದನೆ, ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮಸ್ಕಾರ. ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್, ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್. ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರಿಗೆ, ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರಿಗೆ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪರವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ, ಈಗ ಮುಂದಿನದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕನ್ನಡಿಗ, ದಿಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ದೆಹಲಿಯ ಗದ್ದುಗೆಯನ್ನೇರಿದಂತಹ ಮಣ್ಣಿನ ಮಗ, ಶ್ರೀಮಾನ್ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಎಚ್ ಡಿ ದೇವೇಗೌಡರವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕೆಂದು ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೀನಿ.
ಈ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಯಶಸ್ವಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರೇ, ಹಿರಿಯರಾದ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರೇ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರತಕ್ಕಂಥ ಉಮೇದುವಾರಗಳಾದ ಯದುವೀರ್ ದತ್ತ ಅವರೇ, ಶ್ರೀಮಾನ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರೇ, ಬಾಲರಾಜ್ ಅವರೇ, ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣವರೇ, ಮಾಜಿ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಸುಮಲತಾ ಅವರೇ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಾಜಿ ಮಂತ್ರಿಗಳು, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಒಂದು ಬೃಹತ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಹಿರಿಯ ಕಿರಿಯ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು, ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರು, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ನಾನು ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನನ್ನ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ತಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ. ಇಂದು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ 10 ವರ್ಷ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಗೌರವವನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ರೆ ನನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಮಾನ್ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ. ನಾನು ಎದ್ದು ನಿಂತುಕೊಂಡು ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ. 2 ಮಂಡಿ ನೋವಿದೆ. ನಾನು ಅವರು ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಅವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಯಾವ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರು ಪಂಚರತ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಗೂ ಜಲಧಾರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು 10 ತಿಂಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ಕೇವಲ 1 ದಿನ ಅಥವಾ 2 ದಿನ ಮುಂಚೆ ನಿಮಗೆ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಈ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳಿಂದ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 132 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು 136 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಂತ 2 ಮಹನೀಯರು ಇವತ್ತು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರಾಜ್ಯ ಹೇಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ? ನನ್ನ 64 ವರ್ಷದ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಬಿಡಿಎ, ಬೆಂಗಳೂರು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಥಾರಿಟಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಥಾರಿಟಿ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇರಿಗೇಷನ್, ವಾಚ್ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ, ರಾಜಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ, ಛತ್ತೀಸ್ಗಢಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತು, ಕರ್ನಾಟಕ ಜನತೆಯ ಸಂಪತ್ತು. ಈ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಕಳಿಸಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯನ್ನ ಸೋಲಿಸಲೇಬೇಕು. ಅಯ್ಯಂಡಿ ದೇವೇಗೌಡರು ಈ 91 ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ
ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಜೊತೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಥ ದುರ್ದೈವ! ಅಬ್ಬ! ಯಾರು ಇವತ್ತು ಈ ದೇಶವನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ, ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ರೆ ನನ್ನ ರಾಜಕೀಯದ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ. ನನಗೆ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲದೇನೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿನ ನೀನು ಮೋದಿಯವರ ಜೊತೆ ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಈ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಈ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಸೂರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೂರೆ ಮಾಡು, ಇದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಹೋಗು ನೀನು ಮೋದಿಯವರ ಜೊತೆ ಹೋಗು. ನನ್ನ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಯದುವೀರವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಾನುಭಾವ ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರು, ರಾಜರಾಜರು ಈ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈಗ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಇಬ್ಬರು ಜನ, ಎರಡು ಮಹಾನುಭಾವರು ಈ ರಾಜ್ಯ ಆಳ್ತಾರೆ. ಆ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರಿಗೆ ನಮೋ ಮೋದಿಯವರ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಲಘುವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕೇವಲ 6 ಕೋಟಿಯ ಜನತೆಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, 150 ಕೋಟಿಯ ಜನತೆಯ ಈ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಬ್ಬ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ. ನಾನು ದಿನಕ್ಕೆ 4 ಸಭೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ 3 ಜೆಡಿಎಸ್ಗೆ ಸೀಟ್ ಅಲ್ಲ, ನನಗೆ 28 ಸೀಟು. ಏನು ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ, ಅದು ತುಮಕೂರು ಇರಬಹುದು, ರಾಯಚೂರು ಇರಬಹುದು, ಬಿಜಾಪುರ ಇರಬಹುದು. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರೇ, ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ದುಡಿದಿದ್ದೇನೆ, 60 ವರ್ಷ ದುಡಿದಿದ್ದೇನೆ. ನೀವೆಲ್ಲಿ ಕರೆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತೇನೆ. ಆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಮೋದಿಯವರಿಗೆ ಒಂದು ಭರವಸೆ, ಈ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಕನಿಷ್ಠ 24 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ನಾವು ಎನ್ಡಿಎಯಿಂದ ಗೆದ್ದು, ಕೇವಲ 3 ಸ್ಥಾನ ಜೆಡಿಎಸ್ ಅಲ್ಲ, ಎನ್ಡಿಎಯಿಂದ ಗೆದ್ದು ನಿಮಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಏನು ಹಿಂದೂಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ 5ನೇ ಸ್ಥಾನದಿಂದ 3ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತರುವ ಶಪಥವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ನೀವು. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆ 3 ಜೆಡಿಎಸ್ ಅಲ್ಲ, 24 ಎನ್ಡಿಎ. ಕನಿಷ್ಠ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರೇ, ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನಾನು ನೆರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಬೃಹತ್ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ 4 ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತ ಆಗಿಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯದ ಮಹಾಜನತೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೈ ಮುಗಿದು
ಈ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಈ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಬಲಯುತವಾಗಿ ಬೆಳೆಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ ಎನ್ಡಿಎನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೇ ಒಬ್ಬರು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು. ಆ ಎನ್ಡಿಎನಲ್ಲಿ ನಾನು ಅನವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಯಾರೂ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ. ದಯಮಾಡಿ ಆ ಎನ್ಡಿಎ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತು ನನಗೆ, ಅವರು ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ದೇಶ ಉಳಿಸೋಣ, ಈ ದೇಶ ಉಳಿಸೋಣ. ಇದು ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲ. ಎನ್ಡಿಎ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ 3ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಅವರ ಕನಸು 400 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಏನು ಗಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕನಿಷ್ಠ 24 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಹಾಜನತೆಯ ಕೊಡುಗೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಈ ನನ್ನ ಮನವಿಯನ್ನ ನಾಡಿನ 6 ಕೋಟಿ ಜನತೆ ಮಾನ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮುಖೇಣ, ಮಾಧ್ಯಮದ ಸ್ನೇಹಿತರ ಮುಖೇಣ ನಾನು ಕೈ ಮುಗಿದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಭಾರತ್. ಸನ್ಮಾನ್ಯ HD ದೇವೇಗೌಡರವರಿಗೆ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾ, ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ उनके मन की बात से सबका मन जीतने वाला, विश्व के भूपट में भारत को एक बलिष्ठ राष्ट्र आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम सबको मार्गदर्शन करें. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. आज चैत्र नवरात्र के पावन अवसर पर मुझे ताई चामुंडेश्वरी के आशीर्वाद लेने का अवसर मिल रहा है. मैं ताई चामुंडेश्वरी, ताई भुवनेश्वरी और ताई कावेरी के चरणों में प्रणाम करता हूं. मैं सबसे पहले आदरणीय देवगौड़ा जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं. आज भारत के राजनीति के पटल पर सबसे सीनियर मोस्ट राजनेता है और उनके आशीर्वाद प्राप्त करना ये भी एक बहुत बड़ा सौभाग्य है. उन्होंने आज जो बातें बताई, काफी कुछ मैं समझ पाता था, लेकिन मैं हृदय से उनका बहुत आभारी हूं. साथियों, मैसूरू और कर्नाटका की धरती पर शक्ति का आशीर्वाद मिलना यानी पूरे कर्नाटका का आशीर्वाद मिलना, इतनी बड़ी संख्या में आपकी उपस्थिति, कर्नाटका की मेरी माताओं बहनों की उपस्थिति, ये साफ बता रही है कि कर्नाटका के मन में क्या है. पूरा कर्नाटका कह रहा है, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार
साथियों, आज का दिन इस लोकसभा चुनाव और अगले 5 ईयर के लिए एक बहुत अहम दिन है। आज ही बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है। ये संकल्प पत्र मोदी की गारंटी है और देवेगौड़ा जी ने भी गारंटी का उल्लेख किया है। ये मोदी की गारंटी है कि हर गरीब को अपना घर देने के लिए 3 करोड़ नए घर बनाए जाएंगे। ये मोदी की गारंटी है कि हर गरीब को अगले 5 ईयर तक फ्री राशन मिलता रहेगा। ये मोदी की गारंटी है कि 70 ईयर की आयु के ऊपर के हर सीनियर सिटीजन को आयुष्मान योजना के तहत फ्री चिकित्सा मिलेगी। ये मोदी की गारंटी है कि हम 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाएंगे। ये गारंटी कर्नाटका के हर व्यक्ति का, हर गरीब का जीवन बेहतर बनाएगी। साथियों, आज जब हम 10 इयर्स पहले के समय को याद करते हैं तो हमें लगता है कि हम कितना आगे आए हैं। डिजिटल इंडिया ने हमारे जीवन को तेजी से बदला है। बीजेपी का संकल्प पत्र अब भविष्य के और बड़े परिवर्तनों की तस्वीर है। ये नए भारत की तस्वीर है। पहले भारत खस्ता हाल सड़कों के लिए जाना जाता था। अब एक्सप्रेसवे भारत की पहचान है। आने वाले समय में भारत एक्सप्रेसवे, वाटरवेज और एयरवेज के वर्ल्ड क्लास नेटवर्क के निर्माण से विश्व को हैरान करेगा। 10 साल पहले भारत टेक्नोलॉजी के लिए दूसरे देशों की ओर देखता था। आज भारत चंद्रयान भी भेज रहा है और सेमीकंडक्टर भी बनाने जा रहा है। अब भारत विश्व का बड़ा इनोवेशन हब बनकर उभरेगा। यानी हम पूरे विश्व के लिए सस्ती मेडिसिन, सस्ती टेक्नोलॉजी और सस्ती गाड़ियां बनाएंगे। भारत वर्ल्ड का रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D हब बनेगा और इसमें वैज्ञानिक रिसर्च के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के फंड की भी बड़ी भूमिका होगी। कर्नाटका देश का IT और टेक्नोलॉजी हब है। यहां के युवाओं को
इसका सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा। साथियों, हमने संकल्प पत्र में स्थानीय भाषाओं को प्रमोट करने की बात कही है। हमारी कन्नड़ा देश की इतनी समृद्ध भाषा है, बीजेपी के इस मिशन से कन्नड़ा का विस्तार होगा और उसे बड़ी पहचान मिलेगी। साथ ही हमने विरासत के विकास की गारंटी भी दी है। हमारे कर्नाटका के मैसूरू, हम्पी और बादामी जैसी जो हेरिटेज साइट्स हैं, हम उनको वर्ल्ड टूरिज्म मैप पर प्रमोट करेंगे। इससे कर्नाटका में टूरिज्म और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। साथियों, इन सारे लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए भाजपा जरूरी है, एनडीए जरूरी है। एनडीए जो कहता है वो करके दिखाता है। आर्टिकल 370 हो, 3 तलाक के खिलाफ कानून हो, महिलाओं के लिए आरक्षण हो या राम मंदिर का भव्य निर्माण, भाजपा का संकल्प मोदी की गारंटी होता है। और मोदी की गारंटी को सबसे बड़ी ताकत कहां से मिलती है? सबसे बड़ी ताकत आपके एक वोट से मिलती है। आपका हर वोट मोदी की ताकत बढ़ाता है। आपका हर एक वोट मोदी की ऊर्जा बढ़ाता है। साथियों, कर्नाटका में तो एनडीए के पास एचडी देवेगौड़ा जी जैसे वरिष्ठ नेता का मार्गदर्शन है। हमारे पास येदियुरप्पा जी जैसे समर्पित और अनुभवी नेता है। हमें एचडी कुमारस्वामी जी का सक्रिय सहयोग है। इनका ये अनुभव कर्नाटका के विकास के लिए बहुत काम आएगा। साथियों, कर्नाटका उस महान परंपरा का वाहक है जो देश की एकता और अखंडता के लिए अपना सब कुछ बलिदान करना सिखाता है। यहां सुत्तूर मठ के संतों की परंपरा है। राष्ट्र कवि कुवेंपु के एकता के स्वर है। फील्ड मार्शल करियप्पा का गौरव है और मैसूरू के राजा कृष्णराज वाडिया के द्वारा किए गए विकास कार्य आज भी देश के लिए एक प्रेरणा है। ये वो धरती है जहां कोडगू की माताएं अपने बच्चों को राष्ट्र सेवा के लिए सेना में भेजने के सपना देखती है।
लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी भी है। कांग्रेस पार्टी आज टुकड़े टुकड़े गैंग की सुल्तान बनकर घूम रही है। देश को बांटने, तोड़ने और कमजोर करने के कांग्रेस पार्टी के खतरनाक इरादे आज भी वैसे ही है। आर्टिकल 370 के सवाल पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि कश्मीर का दूसरे राज्यों से क्या संबंध, और अब तो कांग्रेस देश से घृणा की सारी परम सीमाएं पार कर चुकी है। कर्नाटका की जनता साक्षी है कि जो भारत के खिलाफ बोलता है, कांग्रेस उसे पुरस्कार में चुनाव का टिकट दे देती है। और आपने हाल में एक और दृश्य देखा होगा। कांग्रेस की चुनावी रैली में एक व्यक्ति ने भारत माता की जय के नारे लगवाए। इसके लिए उसे मंच पर बैठे नेताओं से परमिशन लेनी पड़ी। क्या भारत माता की जय बोलने के लिए परमिशन लेनी पड़े? कांग्रेस को देश माफ करेगा? ऐसी कांग्रेस को कर्नाटक माफ करेगा? ऐसी कांग्रेस को मैसूरी माफ करेगा? पहले वंदे मातरम का विरोध और अब भारत माता की जय कहने तक से चीड़, ये कांग्रेस के पतन की पराकाष्ठा है। साथियों, आज कांग्रेस पार्टी सत्ता के लिए आग का खेल खेल रही है। आज आप देश की दिशा देखिए और कांग्रेस की भाषा देखिए। आज विश्व में भारत का कद और सम्मान बढ़ रहा है। बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? दुनिया में भारत का नाम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? भारत का गौरव बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? हर भारतीय को दुनिया गर्व से देखती है कि नहीं देखती है? तो कांग्रेस के नेता विदेशों में जाकर देश को नीचा दिखाने के कोई मौके छोड़ते नहीं है। देश अपने दुश्मनों को अब मुंह तोड़ जवाब देता है। तो कांग्रेस सेना से सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगती है। आतंकी गतिविधियों में शामिल जिस संगठन पर बैन लगता है, कांग्रेस उसी के पॉलिटिकल विंग के साथ काम कर रहा है। कर्नाटका में तुष्टीकरण का खुला खेल चल रहा है। पर्व त्योहारों पर
रोक लगाने की कोशिश हो रही है। धार्मिक झंडे उतरवाए जा रहे हैं। आप मुझे बताइए, क्या वोट बैंक का यही खेल खेलने वालों के हाथ में देश की बागडोर दी जा सकती है? दी जा सकती है? साथियों, हमारा मैसूरू तो कर्नाटका की कल्चरल कैपिटल है। मैसूरू का दशहरा तो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। 22 जनवरी को अयोध्या में 500 इयर्स का सपना पूरा हुआ। पूरा देश इस अवसर पर एक हो गया, लेकिन कांग्रेस के लोगों ने, उनके साथी दलों ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा जैसे पवित्र समारोह तक पर विश्वमन किया, निमंत्रण को ठुकरा दिया। जितना हो सका इन्होंने हमारी आस्था का अपमान किया। कांग्रेस और इंडिया अलायंस ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का बायकॉट कर दिया। इंडिया अलायंस के लोग सनातन को समाप्त करना चाहते हैं, हिंदू धर्म की शक्ति का विनाश करना चाहते हैं। लेकिन जब तक मोदी है, जब तक मोदी के साथ आपके आशीर्वाद है, ये नफरती ताकतें कभी भी सफल नहीं होगी, ये मोदी की गारंटी है। साथियों, 2024 का लोकसभा चुनाव अगले 5 इयर्स नहीं, बल्कि 2047 के विकसित भारत का भविष्य तय करेगा। इसलिए मोदी देश के विकास के लिए अपना हर पल लगा रहा है। पल पल आपके नाम, पल पल देश के नाम। 24/7 24/7 फॉर 2047। मेरा 10 इयर्स का रिपोर्ट कार्ड भी आपके सामने है। मैं कर्नाटका की बात करूं तो कर्नाटका के 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है। 4,50,000 गरीब परिवारों को कर्नाटका में पीएम आवास मिले हैं। 1,50,00,000 से ज्यादा गरीबों को मुफ्त इलाज की गारंटी मिली है। नेशनल हाईवे के नेटवर्क का भी यहां बड़ा विस्तार किया गया है। मैसूरू से बेंगलुरु के बीच एक्सप्रेसवे ने
इस क्षेत्र को नई गति दी है। आज देश के साथ साथ कर्नाटका में भी वंदे भारत ट्रेनें दौड़ रही है। जल जीवन मिशन के तहत 1000 से अधिक गांवों में लोगों को नल से जल मिलने लगा है। ये नतीजे बताते हैं कि अगर नीयत सही तो नतीजे भी सही। आने वाले 5 इयर्स में विकास के काम, गरीब कल्याण की ये योजनाएं 100% लोगों तक पहुंचेगी, ये मोदी की गारंटी है। साथियों, मोदी ने अपने 10 इयर्स का हिसाब देना अपना कर्तव्य माना है। क्या आपने कभी कांग्रेस को उसके 60 इयर्स का हिसाब देते देखा है? नहीं ना? क्योंकि कांग्रेस केवल समस्या पैदा करना जानती है, कांग्रेस धोखा देना जानती है। कर्नाटका के लोग इसी पीड़ा में फंसे हुए हैं। कर्नाटका कांग्रेस पार्टी की लूट का एटीएम स्टेट बन चुका है। खाली लूट के कारण सरकारी खजाना खाली हो चुका है। विकास और गरीब कल्याण की योजनाओं को बंद किया जा रहा है। वादा किसानों को मुफ्त बिजली का था, लेकिन किसानों को पंप सेट चलाने तक की बिजली नहीं मिल रही। युवाओं की, छात्रों की स्कॉलरशिप तक में कटौती हो रही है। किसानों को किसान सम्मान निधि में राज्य सरकार की ओर से मिल रही 4000 रुपए बंद कर दिए गए हैं। देश का आईटी हब बेंगलुरु पानी के घनघोर संकट से जूझ रहा है। पानी के टैंकर की कालाबाजारी हो रही है। इन सब के बीच कांग्रेस पार्टी को चुनाव लड़वाने के लिए hundreds of करोड़ रुपीस ब्लैक मनी कर्नाटका से देश भर में भेजा जा रहा है। ये कांग्रेस शासन का मॉडल है। जो अपराध इन्होंने कर्नाटका के साथ किया है, इसकी सजा उन्हें 26 अप्रैल को देनी है, 26 अप्रैल को देनी है। साथियों, मैं शुरू से एनडीए के उम्मीदवार श्री यदुवीर कृष्णादत्त चामराजनगर से श्री एस बालाराज, हासन लोकसभा से एनडीए के श्री प्रज्वलन रेवन्ना और मंड्या से मेरे मित्र एचडी कुमारस्वामी आने वाली 26 अप्रैल को इनके लिए आपका हर वोट मोदी को मजबूती देगा, देश का भविष्य तय करेगा। मैसूरू की धरती से मेरी आप सभी से एक और अपील है। मेरा एक काम करोगे? जरा हाथ पर बता करके बताइए, करोगे? कर्नाटका के घर घर जाना, हर किसी को मिलना और मोदी जी का प्रणाम पहुंचा देना।
पहुंचा देंगे, पहुंचा देंगे। मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। नन्ना नमस्कार गणो। आज चैत्र नवरात्र के पावन अवसर पर मुझे ताई चामुंडेश्वरी के आशीर्वाद लेने का अवसर मिल रहा है। मैं ताई चामुंडेश्वरी, ताई भुवनेश्वरी और ताई कावेरी के चरणों में प्रणाम करता हूं। मैं सबसे पहले आदरणीय देवगौड़ा जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आज भारत के राजनीति के पटल पर सबसे सीनियर मोस्ट राजनेता है और उनके आशीर्वाद प्राप्त करना ये भी एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। उन्होंने आज जो बातें बताई, काफी कुछ मैं समझ पाता था, लेकिन मैं हृदय से उनका बहुत आभारी हूं। साथियों, मैसूरू और कर्नाटका की धरती पर शक्ति का आशीर्वाद मिलना यानी पूरे कर्नाटका का आशीर्वाद मिलना, इतनी बड़ी संख्या में आपकी उपस्थिति, कर्नाटका की मेरी माताओं बहनों की उपस्थिति, ये साफ बता रही है कि कर्नाटका के मन में क्या है। पूरा कर्नाटका कह रहा है, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। साथियों, आज का दिन इस लोकसभा चुनाव और अगले 5 ईयर के लिए एक बहुत अहम दिन है। आज ही बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है। ये संकल्प पत्र मोदी की गारंटी है और देवगौड़ा जी ने भी गारंटी का उल्लेख किया है। ये मोदी की गारंटी है कि हर गरीब को अपना घर देने के लिए 3 करोड़ नए घर बनाए जाएंगे। ये मोदी की गारंटी है कि हर गरीब को अगले 5 ईयर तक फ्री राशन मिलता रहेगा। ये मोदी की गारंटी है कि 70 ईयर की आयु के ऊपर के हर सीनियर सिटीजन को आयुष्मान योजना के तहत फ्री चिकित्सा मिलेगी।
ये मोदी की गारंटी है कि हम 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाएंगे। ये गारंटी कर्नाटका के हर व्यक्ति का, हर गरीब का जीवन बेहतर बनाएगी। साथियों, आज जब हम 10 इयर्स पहले के समय को याद करते हैं तो हमें लगता है कि हम कितना आगे आए हैं। डिजिटल इंडिया ने हमारे जीवन को तेजी से बदला है। बीजेपी का संकल्प पत्र अब भविष्य के और बड़े परिवर्तनों की तस्वीर है। ये नए भारत की तस्वीर है। पहले भारत खस्ता हाल सड़कों के लिए जाना जाता था। अब एक्सप्रेसवे भारत की पहचान है। आने वाले समय में भारत एक्सप्रेसवे, वाटरवेज और एयरवेज के वर्ल्ड क्लास नेटवर्क के निर्माण से विश्व को हैरान करेगा। 10 साल पहले भारत टेक्नोलॉजी के लिए दूसरे देशों की ओर देखता था। आज भारत चंद्रयान भी भेज रहा है और सेमीकंडक्टर भी बनाने जा रहा है। अब भारत विश्व का बड़ा इनोवेशन हब बनकर उभरेगा। यानी हम पूरे विश्व के लिए सस्ती मेडिसिन, सस्ती टेक्नोलॉजी और सस्ती गाड़ियां बनाएंगे। भारत वर्ल्ड का रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D हब बनेगा और इसमें वैज्ञानिक रिसर्च के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के फंड की भी बड़ी भूमिका होगी। कर्नाटका देश का IT और टेक्नोलॉजी हब है। यहां के युवाओं को इसका सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा। साथियों, हमने संकल्प पत्र में स्थानीय भाषाओं को प्रमोट करने की बात कही है। हमारी कन्नड़ा देश की इतनी समृद्ध भाषा है। बीजेपी के इस मिशन से कन्नड़ा का विस्तार होगा और उसे बड़ी पहचान मिलेगी। साथ ही हमने विरासत के विकास की गारंटी भी दी है। हमारे कर्नाटका के मैसूरू, हम्पी और बादामी जैसी जो हेरिटेज साइट्स हैं, हम उनको वर्ल्ड टूरिज्म मैप पर प्रमोट करेंगे। इससे कर्नाटका में टूरिज्म और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। साथियों, इन सारे लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए भाजपा जरूरी है, एनडीए जरूरी है। एनडीए जो कहता है
वो करके दिखाता है। आर्टिकल 370 हो, 3 तलाक के खिलाफ कानून हो, महिलाओं के लिए आरक्षण हो या राम मंदिर का भव्य निर्माण, भाजपा का संकल्प मोदी की गारंटी होता है। और मोदी की गारंटी को सबसे बड़ी ताकत कहां से मिलती है? सबसे बड़ी ताकत आपके एक वोट से मिलती है। आपका हर वोट मोदी की ताकत बढ़ाता है। आपका हर एक वोट मोदी की ऊर्जा बढ़ाता है। साथियों, कर्नाटका में तो एनडीए के पास एचडी देवेगौड़ा जी जैसे वरिष्ठ नेता का मार्गदर्शन है। हमारे पास येदियुरप्पा जी जैसे समर्पित और अनुभवी नेता है। हमें एचडी कुमारस्वामी जी का सक्रिय सहयोग है। इनका ये अनुभव कर्नाटका के विकास के लिए बहुत काम आएगा। साथियों, कर्नाटका उस महान परंपरा का वाहक है जो देश की एकता और अखंडता के लिए अपना सब कुछ बलिदान करना सिखाता है। यहां सुत्तूर मठ के संतों की परंपरा है। राष्ट्र कवि कुवेंपु के एकता के स्वर है। फील्ड मार्शल करियप्पा का गौरव है। और मैसूरू के राजा कृष्णराज वाडिया के द्वारा किए गए विकास कार्य आज भी देश के लिए एक प्रेरणा है। ये वो धरती है जहां कोडगू की माताएं अपने बच्चों को राष्ट्र सेवा के लिए सेना में भेजने के सपना देखती है। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी भी है। कांग्रेस पार्टी आज टुकड़े टुकड़े गैंग की सुल्तान बनकर घूम रही है। देश को बांटने, तोड़ने और कमजोर करने के कांग्रेस पार्टी के खतरनाक इरादे आज भी वैसे ही है। आर्टिकल 370 के सवाल पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि कश्मीर का दूसरे राज्यों से क्या संबंध। और अब तो कांग्रेस देश से घृणा की सारी परंपरा सीमाएं पार कर चुकी है। कर्नाटका की जनता साक्षी है कि जो भारत के खिलाफ बोलता है, कांग्रेस उसे पुरस्कार में चुनाव का टिकट दे देती है। और आपने हाल में एक और दृश्य देखा होगा। कांग्रेस की चुनावी रैली में एक व्यक्ति ने
भारत माता की जय के नारे लगवाए। इसके लिए उसे मंच पर बैठे नेताओं से परमिशन लेनी पड़ी। क्या भारत माता की जय बोलने के लिए परमिशन लेनी पड़े? कांग्रेस को देश माफ करेगा? ऐसी कांग्रेस को कर्नाटक माफ करेगा? ऐसी कांग्रेस को मैसूरी माफ करेगा? पहले वंदे मातरम का विरोध और अब भारत माता की जय कहने तक से चीड़, ये कांग्रेस के पतन की पराकाष्ठा है। साथियों, आज कांग्रेस पार्टी सत्ता के लिए आग का खेल खेल रही है। आज आप देश की दिशा देखिए और कांग्रेस की भाषा देखिए। आज विश्व में भारत का कद और सम्मान बढ़ रहा है। बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? दुनिया में भारत का नाम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? भारत का गौरव बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? हर भारतीय को दुनिया गर्व से देखती है कि नहीं देखती है? तो कांग्रेस के नेता विदेशों में जाकर देश को नीचा दिखाने के कोई मौके छोड़ते नहीं है। देश अपने दुश्मनों को अब मुंह तोड़ जवाब देता है। तो कांग्रेस सेना से सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगती है। आतंकी गतिविधियों में शामिल जिस संगठन पर बैन लगता है, कांग्रेस उसी के पॉलिटिकल विंग के साथ काम कर रहा है। कर्नाटका में तुष्टीकरण का खुला खेल चल रहा है। पर्व त्योहारों पर रोक लगाने की कोशिश हो रही है। धार्मिक झंडे उतरवाए जा रहे हैं। आप मुझे बताइए, क्या वोट बैंक का यही खेल खेलने वालों के हाथ में देश की बागडोर दी जा सकती है? दी जा सकती है? साथियों, हमारा मैसूरू तो कर्नाटका की कल्चरल कैपिटल है। मैसूरू का दशहरा तो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। 22 जनवरी को अयोध्या में 500 इयर्स का सपना पूरा हुआ। पूरा देश इस अवसर पर एक हो गया। लेकिन कांग्रेस के लोगों ने, उनके साथी दलों ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा जैसे पवित्र समारोह तक पर विश्वमन किया, निमंत्रण को ठुकरा दिया। जितना हो सका इन्होंने हमारी आस्था का अपमान किया। कांग्रेस
और इंडिया अलायंस ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का बायकॉट कर दिया। इंडिया अलायंस के लोग सनातन को समाप्त करना चाहते हैं, हिंदू धर्म की शक्ति का विनाश करना चाहते हैं। लेकिन जब तक मोदी है, जब तक मोदी के साथ आपके आशीर्वाद है, ये नफरती ताकतें कभी भी सफल नहीं होगी, ये मोदी की गारंटी है। साथियों, 2024 का लोकसभा चुनाव अगले 5 इयर्स नहीं, बल्कि 2047 के विकसित भारत का भविष्य तय करेगा। इसलिए मोदी देश के विकास के लिए अपना हर पल लगा रहा है। पल पल आपके नाम, पल पल देश के नाम। 24/7 24/7 फॉर 2047। मेरा 10 इयर्स का रिपोर्ट कार्ड भी आपके सामने है। मैं कर्नाटका की बात करूं तो कर्नाटका के 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है। 4,50,000 गरीब परिवारों को कर्नाटका में पीएम आवास मिले हैं। 1,50,00,000 से ज्यादा गरीबों को मुफ्त इलाज की गारंटी मिली है। नेशनल हाईवे के नेटवर्क का भी यहां बड़ा विस्तार किया गया है। मैसूरू से बेंगलुरु के बीच एक्सप्रेसवे ने इस क्षेत्र को नई गति दी है। आज देश के साथ साथ कर्नाटका में भी वंदे भारत ट्रेनें दौड़ रही है। जल जीवन मिशन के तहत 1,000 से अधिक गांवों में लोगों को नल से जल मिलने लगा है। ये नतीजे बताते हैं कि अगर नीयत सही तो नतीजे भी सही। आने वाले 5 इयर्स में विकास के काम, गरीब कल्याण की ये योजनाएं 100% लोगों तक पहुंचेगी, ये मोदी की गारंटी है। साथियों, मोदी ने अपने 10 इयर्स का हिसाब देना अपना कर्तव्य माना है। क्या आपने कभी कांग्रेस को उसके 60 इयर्स का हिसाब देते देखा है? नहीं ना? क्योंकि कांग्रेस केवल समस्या पैदा करना जानती है, कांग्रेस धोखा देना जानती है। कर्नाटका के लोग
इसी पीड़ा में फंसे हुए हैं। कर्नाटका कांग्रेस पार्टी की लूट का एटीएम स्टेट बन चुका है। खाली लूट के कारण सरकारी खजाना खाली हो चुका है। विकास और गरीब कल्याण की योजनाओं को बंद किया जा रहा है। वादा किसानों को मुफ्त बिजली का था, लेकिन किसानों को पंप सेट चलाने तक की बिजली नहीं मिल रही। युवाओं की, छात्रों की स्कॉलरशिप तक में कटौती हो रही है। किसानों को किसान सम्मान निधि में राज्य सरकार की ओर से मिल रही 4,000 रुपए बंद कर दिए गए हैं। देश का आईटी हब बेंगलुरु पानी के घनघोर संकट से जूझ रहा है। पानी के टैंकर की कालाबाजारी हो रही है। इन सब के बीच कांग्रेस पार्टी को चुनाव लड़वाने के लिए हंड्रेड्स ऑफ करोड़ रुपीज ब्लैक मनी कर्नाटका से देश भर में भेजा जा रहा है। ये कांग्रेस शासन का मॉडल है। जो अपराध इन्होंने कर्नाटका के साथ किया है, इसकी सजा उन्हें 26 अप्रैल को देनी है, 26 अप्रैल को देनी है। साथियों, मैं शुरू से एनडीए के उम्मीदवार श्री यदुवीर कृष्णादत्त चामराजनगर से श्री एस बालाराज, हासन लोकसभा से एनडीए के श्री प्रज्वलन रेवन्ना और मंड्या से मेरे मित्र एचडी कुमारस्वामी आने वाली 26 अप्रैल को इनके लिए आपका हर वोट मोदी को मजबूती देगा, देश का भविष्य तय करेगा। मैसूरू की धरती से मेरी आप सभी से एक और अपील है। मेरा एक काम करोगे? जरा हाथ पर बता करके बताइए, करोगे? कर्नाटका के घर घर जाना, हर किसी को मिलना और मोदी जी का प्रणाम पहुंचा देना। पहुंचा देंगे? पहुंचा देंगे? मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। नन्ना नमस्कार गणो। आज चैत्र नवरात्र के पावन अवसर पर मुझे ताई चामुंडेश्वरी के आशीर्वाद लेने का अवसर मिल रहा है। मैं ताई चामुंडेश्वरी, ताई भुवनेश्वरी और ताई कावेरी के चरणों में प्रणाम करता हूं। मैं सबसे पहले आदरणीय देवगौड़ा जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आज भारत के राजनीति के पटल पर सबसे सीनियर मोस्ट राजनेता है और उनके आशीर्वाद प्राप्त करना
ये भी एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। उन्होंने आज जो बातें बताई, काफी कुछ मैं समझ पाता था, लेकिन मैं हृदय से उनका बहुत आभारी हूं। साथियों, मैसूरू और कर्नाटका की धरती पर शक्ति का आशीर्वाद मिलना यानी पूरे कर्नाटका का आशीर्वाद मिलना, इतनी बड़ी संख्या में आपकी उपस्थिति, कर्नाटका की मेरी माताओं बहनों की उपस्थिति, ये साफ बता रही है कि कर्नाटका के मन में क्या है। पूरा कर्नाटका कह रहा है, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। साथियों, आज का दिन इस लोकसभा चुनाव और अगले 5 ईयर के लिए एक बहुत अहम दिन है। आज ही बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है। ये संकल्प पत्र मोदी की गारंटी है, और देवगौड़ा जी ने भी गारंटी का उल्लेख किया है। ये मोदी की गारंटी है कि हर गरीब को अपना घर देने के लिए 3 करोड़ नए घर बनाए जाएंगे। ये मोदी की गारंटी है कि हर गरीब को अगले 5 ईयर तक फ्री राशन मिलता रहेगा। ये मोदी की गारंटी है कि 70 ईयर की आयु के ऊपर के हर सीनियर सिटीजन को आयुष्मान योजना के तहत फ्री चिकित्सा मिलेगी। ये मोदी की गारंटी है कि हम 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाएंगे। ये गारंटी कर्नाटका के हर व्यक्ति का, हर गरीब का जीवन बेहतर बनाएगी। साथियों, आज जब हम 10 इयर्स पहले के समय को याद करते हैं तो हमें लगता है कि हम कितना आगे आए हैं। डिजिटल इंडिया ने हमारे जीवन को तेजी से बदला है। बीजेपी का संकल्प पत्र अब भविष्य के और बड़े परिवर्तनों की तस्वीर है। ये नए भारत की तस्वीर है। पहले भारत खस्ता हाल सड़कों के लिए जाना जाता था। अब एक्सप्रेसवे भारत की पहचान है। आने वाले समय में भारत एक्सप्रेसवे, वाटरवेज और एयरवेज के वर्ल्ड क्लास नेटवर्क के निर्माण से विश्व को हैरान करेगा। 10 साल पहले भारत टेक्नोलॉजी के लिए दूसरे देशों की ओर देखता था। आज
भारत चंद्रयान भी भेज रहा है और सेमीकंडक्टर भी बनाने जा रहा है। अब भारत विश्व का बड़ा इनोवेशन हब बनकर उभरेगा। यानी हम पूरे विश्व के लिए सस्ती मेडिसिन, सस्ती टेक्नोलॉजी और सस्ती गाड़ियां बनाएंगे। भारत वर्ल्ड का रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D हब बनेगा और इसमें वैज्ञानिक रिसर्च के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के फंड की भी बड़ी भूमिका होगी। कर्नाटका देश का IT और टेक्नोलॉजी हब है। यहां के युवाओं को इसका सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा। साथियों, हमने संकल्प पत्र में स्थानीय भाषाओं को प्रमोट करने की बात कही है। हमारी कन्नड़ा देश की इतनी समृद्ध भाषा है। बीजेपी के इस मिशन से कन्नड़ा का विस्तार होगा और उसे बड़ी पहचान मिलेगी। साथ ही हमने विरासत के विकास की गारंटी भी दी है। हमारे कर्नाटका के मैसूरू, हम्पी और बादामी जैसी जो हेरिटेज साइट्स हैं, हम उनको वर्ल्ड टूरिज्म मैप पर प्रमोट करेंगे। इससे कर्नाटका में टूरिज्म और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। साथियों, इन सारे लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए भाजपा जरूरी है, एनडीए जरूरी है। एनडीए जो कहता है वो करके दिखाता है। आर्टिकल 370 हो, 3 तलाक के खिलाफ कानून हो, महिलाओं के लिए आरक्षण हो या राम मंदिर का भव्य निर्माण, भाजपा का संकल्प मोदी की गारंटी होता है। और मोदी की गारंटी को सबसे बड़ी ताकत कहां से मिलती है? सबसे बड़ी ताकत आपके एक वोट से मिलती है। आपका हर वोट मोदी की ताकत बढ़ाता है। आपका हर एक वोट मोदी की ऊर्जा बढ़ाता है। साथियों, कर्नाटका में तो एनडीए के पास एचडी देवेगौड़ा जी जैसे वरिष्ठ नेता का मार्गदर्शन है। हमारे पास येदियुरप्पा जी जैसे समर्पित और अनुभवी नेता है। हमारे एचडी कुमारस्वामी जी का सक्रिय सहयोग है। इनका ये अनुभव कर्नाटका के विकास के लिए बहुत काम आएगा। साथियों, कर्नाटका
उस महान परंपरा का वाहक है जो देश की एकता और अखंडता के लिए अपना सब कुछ बलिदान करना सिखाता है। यहां सुत्तूर मठ के संतों की परंपरा है। राष्ट्र कवि कुवेंपु के एकता के स्वर है। फील्ड मार्शल करियप्पा का गौरव है और मैसूरू के राजा कृष्णराज वाडिया के द्वारा किए गए विकास कार्य आज भी देश के लिए एक प्रेरणा है। ये वो धरती है जहां कोडगू की माताएं अपने बच्चों को राष्ट्र सेवा के लिए सेना में भेजने के सपना देखती है। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी भी है। कांग्रेस पार्टी आज टुकड़े टुकड़े गैंग की सुल्तान बनकर घूम रही है। देश को बांटने, तोड़ने और कमजोर करने के कांग्रेस पार्टी के खतरनाक इरादे आज भी वैसे ही है। आर्टिकल 370 के सवाल पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि कश्मीर का दूसरे राज्यों से क्या संबंध, और अब तो कांग्रेस देश से घृणा की सारी परंपरा सीमाएं पार कर चुकी है। कर्नाटका की जनता साक्षी है कि जो भारत के खिलाफ बोलता है कांग्रेस उसे पुरस्कार में चुनाव का टिकट दे देती है। और आपने हाल में एक और दृश्य देखा होगा। कांग्रेस की चुनावी रैली में एक व्यक्ति ने भारत माता की जय के नारे लगवाए। इसके लिए उसे मंच पर बैठे नेताओं से परमिशन लेनी पड़ी। क्या भारत माता की जय बोलने के लिए परमिशन लेनी पड़े? कांग्रेस को देश माफ करेगा? ऐसी कांग्रेस को कर्नाटक माफ करेगा? ऐसी कांग्रेस को मैसूरू माफ करेगा? पहले वंदे मातरम का विरोध और अब भारत माता की जय कहने तक से चीड़, ये कांग्रेस के पतन की पराकाष्ठा है। साथियों, आज कांग्रेस पार्टी सत्ता के लिए आग का खेल खेल रही है। आज आप देश की दिशा देखिए और कांग्रेस की भाषा देखिए। आज विश्व में भारत का कद और सम्मान बढ़ रहा है। बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? दुनिया में भारत का नाम हो रहा है कि नहीं हो रहा है?
गर्व से देखते हैं कि नहीं देखते हैं? तो कांग्रेस के नेता विदेशों में जाकर देश को नीचा दिखाने के कोई मौके छोड़ते नहीं है। देश अपने दुश्मनों को अब मुंह तोड़ जवाब देता है। तो कांग्रेस सेना से सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगती है। आतंकी गतिविधियों में शामिल जिस संगठन पर बैन लगता है, कांग्रेस उसी के पॉलिटिकल विंग के साथ काम कर रहा है। कर्नाटका में तुष्टीकरण का खुला खेल चल रहा है। पर्व त्योहारों पर रोक लगाने की कोशिश हो रही है। धार्मिक झंडे उतरवाए जा रहे हैं। आप मुझे बताइए, क्या वोट बैंक का यही खेल खेलने वालों के हाथ में देश की बागडोर दी जा सकती है? दी जा सकती है? साथियों, हमारा मैसूरू तो कर्नाटका की कल्चरल कैपिटल है। मैसूरू का दशहरा तो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। 22 जनवरी को अयोध्या में 500 इयर्स का सपना पूरा हुआ। पूरा देश इस अवसर पर एक हो गया। लेकिन कांग्रेस के लोगों ने, उनके साथी दलों ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा जैसे पवित्र समारोह तक पर विश्वमन किया, निमंत्रण को ठुकरा दिया। जितना हो सका इन्होंने हमारी आस्था का अपमान किया। कांग्रेस और इंडिया अलायंस ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का बायकॉट कर दिया। इंडिया अलायंस के लोग सनातन को समाप्त करना चाहते हैं। हिंदू धर्म की शक्ति का विनाश करना चाहते हैं। लेकिन जब तक मोदी है, जब तक मोदी के साथ आपके आशीर्वाद है, ये नफरती ताकतें कभी भी सफल नहीं होगी। ये मोदी की गारंटी है। साथियों, 2024 का लोकसभा चुनाव अगले 5 इयर्स नहीं, बल्कि 2047 के विकसित भारत का भविष्य तय करेगा। इसलिए मोदी देश के विकास के लिए अपना हर पल लगा रहा है। पल पल आपके नाम, पल पल देश के नाम। 20
24/7 24/7 for 2047. मेरा 10 इयर्स का रिपोर्ट कार्ड भी आपके सामने है। मैं कर्नाटका की बात करूं तो कर्नाटका के 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है। 4,50,000 गरीब परिवारों को कर्नाटका में पीएम आवास मिले हैं। 1,50,00,000 से ज्यादा गरीबों को मुफ्त इलाज की गारंटी मिली है। नेशनल हाईवे के नेटवर्क का भी यहां बड़ा विस्तार किया गया है। मैसूरू से बेंगलुरु के बीच एक्सप्रेसवे ने इस क्षेत्र को नई गति दी है। आज देश के साथ साथ कर्नाटका में भी वंदे भारत ट्रेनें दौड़ रही है। जल जीवन मिशन के तहत 1,000 से अधिक गांवों में लोगों को नल से जल मिलने लगा है। ये नतीजे बताते हैं कि अगर नीयत सही तो नतीजे भी सही। आने वाले 5 इयर्स में विकास के काम, गरीब कल्याण की ये योजनाएं 100% लोगों तक पहुंचेगी, ये मोदी की गारंटी है। साथियों, मोदी ने अपने 10 इयर्स का हिसाब देना अपना कर्तव्य माना है। क्या आपने कभी कांग्रेस को उसके 60 इयर्स का हिसाब देते देखा है? नहीं ना? क्योंकि कांग्रेस केवल समस्या पैदा करना जानती है, कांग्रेस धोखा देना जानती है। कर्नाटका के लोग इसी पीड़ा में फंसे हुए हैं। कर्नाटका कांग्रेस पार्टी की लूट का एटीएम स्टेट बन चुका है। खाली लूट के कारण सरकारी खजाना खाली हो चुका है। विकास और गरीब कल्याण की योजनाओं को बंद किया जा रहा है। वादा किसानों को मुफ्त बिजली का था, लेकिन किसानों को पंप सेट चलाने तक की बिजली नहीं मिल रही। युवाओं की, छात्रों की स्कॉलरशिप तक में कटौती हो रही है। किसानों को किसान सम्मान निधि में राज्य सरकार की ओर से मिल रही 4,000 रुपए बंद कर दिए गए हैं। देश का आईटी हब बेंगलुरु पानी के घनघोर संकट से जूझ रहा है। पानी के टैंकर की कालाबाजारी हो रही है। इन सब के बीच कांग्रेस पार्टी को चुनाव लड़वाने के लिए hundreds of crore rupees ब्लैक मनी कर्नाटका से देश भर में भेजा जा रहा है। ये कांग्रेस शासन का मॉडल है। जो अपराध इन्होंने कर्नाटका के साथ किया है, इसकी सजा उन्हें 26 अप्रैल को देनी है, 26 अप्रैल को देनी है। साथियों, मैसूरू से एनडीए के उम्मीदवार
श्री यदवीर कृष्णादत्त यमराज वाडियर, चामराजनगर से श्री एस बालाराज, हासन लोकसभा से एनडीए के श्री प्रज्वलन रेवन्ना और मंड्या से मेरे मित्र एचडी कुमारस्वामी। आने वाली 26 अप्रैल को इनके लिए आपका हर वोट मोदी को मजबूती देगा, देश का भविष्य तय करेगा। मैसूरू की धरती से मेरी आप सभी से एक और अपील है। मेरा एक काम करोगे, जरा हाथ पर बता करके बताइए, करोगे? कर्नाटका के घर घर जाना, हर किसी को मिलना और मोदी जी का प्रणाम पहुंचा देना। पहुंचा देंगे? पहुंचा देंगे? मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। नन्ना नमस्कार गणो। आज चैत्र नवरात्र के पावन अवसर पर मुझे ताई चामुंडेश्वरी के आशीर्वाद लेने का अवसर मिल रहा है। मैं ताई चामुंडेश्वरी, ताई भुवनेश्वरी और ताई कावेरी के चरणों में प्रणाम करता हूं। मैं सबसे पहले आदरणीय देवगौड़ा जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आज भारत के राजनीति के पटल पर सबसे सीनियर मोस्ट राजनेता है और उनके आशीर्वाद प्राप्त करना ये भी एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। उन्होंने आज जो बातें बताई, काफी कुछ मैं समझ पाता था, लेकिन मैं हृदय से उनका बहुत आभारी हूं। साथियों, मैसूरू और कर्नाटका की धरती पर शक्ति का आशीर्वाद मिलना यानी पूरे कर्नाटका का आशीर्वाद मिलना, इतनी बड़ी संख्या में आपकी उपस्थिति, कर्नाटका की मेरी माताओं बहनों की उपस्थिति, ये साफ बता रही है कि कर्नाटका के मन में क्या है। पूरा कर्नाटका कह रहा है, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। साथियों, आज का दिन इस लोकसभा चुनाव और अगले 5 ईयर के लिए एक बहुत अहम दिन है। आज ही बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है। ये संकल्प पत्र मोदी की गारंटी है और देवगौड़ा जी ने भी गारंटी का उल्लेख किया है। ये मोदी की गारंटी है कि हर गरीब को
अपना घर देने के लिए 3 करोड़ नए घर बनाए जाएंगे। ये मोदी की गारंटी है कि हर गरीब को अगले 5 ईयर तक फ्री राशन मिलता रहेगा। ये मोदी की गारंटी है कि 70 ईयर की आयु के ऊपर के हर सीनियर सिटीजन को आयुष्मान योजना के तहत फ्री चिकित्सा मिलेगी। ये मोदी की गारंटी है कि हम 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाएंगे। ये गारंटी कर्नाटका के हर व्यक्ति का, हर गरीब का जीवन बेहतर बनाएगी। साथियों, आज जब हम 10 इयर्स पहले के समय को याद करते हैं तो हमें लगता है कि हम कितना आगे आए हैं। डिजिटल इंडिया ने हमारे जीवन को तेजी से बदला है। बीजेपी का संकल्प पत्र अब भविष्य के और बड़े परिवर्तनों की तस्वीर है। ये नए भारत की तस्वीर है। पहले भारत खस्ता हाल सड़कों के लिए जाना जाता था। अब एक्सप्रेसवे भारत की पहचान है। आने वाले समय में भारत एक्सप्रेसवे, वाटरवेज और एयरवेज के वर्ल्ड क्लास नेटवर्क के निर्माण से विश्व को हैरान करेगा। 10 साल पहले भारत टेक्नोलॉजी के लिए दूसरे देशों की ओर देखता था। आज भारत चंद्रयान भी भेज रहा है और सेमीकंडक्टर भी बनाने जा रहा है। अब भारत विश्व का बड़ा इनोवेशन हब बनकर उभरेगा। यानी हम पूरे विश्व के लिए सस्ती मेडिसिन, सस्ती टेक्नोलॉजी और सस्ती गाड़ियां बनाएंगे। भारत वर्ल्ड का रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D हब बनेगा और इसमें वैज्ञानिक रिसर्च के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के फंड की भी बड़ी भूमिका होगी। कर्नाटका देश का